Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their own negative thoughts. So if you are the one who is not able to see positivity anywhere and within yourself as well, then my channel is for you. आपको पता होगा कि मैंने इस संडे को वीडियो नहीं डाली है, और मैंने इसीलिए नहीं डाली बिकॉज आई वॉज डाउन विद वायरल फीवर एंड नाउ आई एम रिकवरिंग. 100% तो ठीक नहीं हुआ है, बट या 80% हो गया है, 20% अभी रहता है. ओके, बट जब मुझे वायरल फीवर था तब आई वेंट होम एंड आई रियलाइज वन थिंग दैट most of my anger is coming from me not being able to set boundaries and me not being able to say no, and me being stuck in people pleasing as in कि अभी कोई कुछ भी बोल रहा है तो हाँ हाँ ठीक है. एंड डीप डाउन देन आई स्टार्ट टू फील एंगर कि यार मैंने क्यों बोल दिया, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चीज़ करनी ही नहीं है, मुझे क्यों फोर्स किया जा रहा है ये चीज़ करने के लिए, मुझे क्यों वो चीज़ बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है जो मैं नहीं हूँ. क्या मैं बन के नहीं रह सकती हूँ? एंड देन आई रियलाइज्ड इट कि बिकॉज आई हैव लर्नड कि आई हैव रेड समवेयर कि sacral and throat chakra connected होता है. And I always used to tell myself that okay, I don't need any friends, relationships, मैं अकेले ही ठीक हूँ, I am very strong, very independent, मुझे कोई नहीं चाहिए. But when I was sick I realized one thing कि we all need community, we all need people, and we all need friends and family who supports us, who are with us. Then why am I saying this? Why, from where it is coming? Then I realized that inside me there are two parts, okay? Two Priyankas, like part works करते हैं ना हम, वैसे ही दो प्रियंका हैं. एक है जो हाइपर इंडिपेंडेंट है, जो कहती है कि उसे कोई नहीं चाहिए, वो सब खुद कर लेगी, वो उसको सब खुद आता है, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसे किसी पे रिलाई नहीं होना, उसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, वो अकेले ही खुश है, बिल्कुल अकेले ही हर जगह चली जाती है, अकेले ही खुश हो जाती है. देन देर इज़ दिस अदर प्रियंका, शी इज़ लाइक मुझे दोस्त चाहिए, आई वॉन्ट टू लीन ऑन टू माई फ्रेंड्स व्हेन आई नीड हेल्प, and I want understanding people where I can be myself. And this hyper independent Priyanka is not allowing any people to come into her life because she's scared कि she cannot be herself in relationships. She fears that she will lose herself and people will not accept her for who she is, and people will not like her for who she is. That's why she is pushing all the relations away. तभी वो किसी भी रिलेशन को, फ्रेंडशिप को सेबोटाज कर देती है. उसे ऐसे लोग ही मिलते हैं जहाँ पे वो अपना ट्रू सेल्फ बन के नहीं रह सकती. ठीक है. एंड देन आई रियलाइज कि ओके, यस, आई वॉन्ट रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ, आई वॉन्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ, बट आई एम स्कैर्ड. I'm scared of rejection. I'm scared of losing myself. I'm scared of losing my identity. I am scared that maybe I will not exist. Maybe my needs will not be heard, will not be seen. My emotions will not be seen and heard. And then I started to ask myself that how am I doing this to myself? How am I not being there for myself? How am I rejecting my own needs? How I am not being my own friend? How am I rejecting my emotional needs? How am I not understanding myself? How am I not taking stand for myself? Then I realized this. बहुत अच्छी धूप आ रही है. So, fear of being in a relationship and losing myself because I have a fear of conflict, yes, and saying no. I have extreme fear of conflict कि सामने वाला जो मुझे बोल रहा है वो मैं कर देती हूँ, अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैं डेंजर में होंगी, मेरे साथ कुछ गलत होगा, एंड आई एम नॉट सेफ.
सर्वाइवल ऑन हो जाता है. Because of my people pleasing, I attract people who get upset whenever there is a conflict, and I say no. Even when I want to be surrounded by people and want relationships, friendships, I still, there is still a part of me who feels it's a burden because of me not being able to communicate and set boundaries. I feel pressure, I bottle up emotions, and sometimes I get confused whether what I am feeling is right or not. I overthink communications and what I would have said. I overthink the same circumstances and the same conversation in my mind about how I would have answered. I hyper focus on their mood and how to keep them pleased and happy. That's why I attract immature people who lack self reflection and accountability, who distance themselves when I express or dismiss or ignore or do not validate, um, who do not self reflect and do not take accountability for themselves. Also, I attract a kind of people who dismiss, ignore, not validate my emotion when I need it. I feel scared around them and think every shift in their mood is about me, and because of me, I start to feel that the relationship is one sided, and then I start to feel exhausted. Then I want to withdraw myself. This happens because of my low self esteem and thinking I am not deserving of receiving love and being understood. I can only receive when I am keeping them happy and pleased. I focus on others bad mood and make all that about myself, and that's how I'm not able to focus on my own needs, and I start to abandon my own needs in every relationship and friendships. So this is what I realized. And then I was shocked ki yeah, maybe, not maybe actually, not maybe. I actually used to do this कि if I am in a relationship, I used to feel कि okay, बिल्कुल selfless होना चाहिए. इसमें अपने बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ सामने वाले के बारे में सोचना चाहिए. मुझे उसके मूड को अच्छा रखना है, मुझे उसे खुश रखना है, उसे मेरी किसी पोस्चर से, किसी बात से, किसी टोन से, मेरे देखने के अंदाज से या फिर किसी भी चीज़ से उसे बुरा ना लग जाए. ये बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको खुश रखूँ, जैसे कि वो कोई बच्चा है, कि मैं उसे खुश रखूँ, कि सारा प्रेशर मैं लेती थी एंड स्टिल मैं लेती हूँ. एंड इफ़ आई एम सिटिंग विथ 5 people and one person is so immature, and उनमें से तीन को नहीं पता कि हमारा और उसका क्या रिलेशन है, एंड एक बंदा है जो बिल्कुल, और वो 3 हैं जो सिर्फ द नेक्स्ट पर्सन को जानते हैं. अब अगर मैं उन 3 लोगों के बीच में बैठ के उस सामने वाले को कुछ बोलती हूँ तो मैं बुरी बनूँगी, एंड देन आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग. देन तो जब ऐसा होता था ना, उसके बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. आई एम सो एंग्री एट माई सेल्फ दैट वाई एम आई नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. वाई एम आई सो एंग्री कि वो 3 लोग गलत सोच लेंगे या फिर वो रिलेशन तोड़ देंगे तो क्या हुआ. अगर वो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी साइड की स्टोरी जाने बिना ही मुझे जज कर रहे हैं सिर्फ एक साइड की स्टोरी से, और दुनिया को सिर्फ एक नज़रिए से वो लोग देखते हैं, इसकी वजह से वो मुझे जज कर रहे हैं, तो वो मेरे लोग नहीं हैं. लेकिन आई नो कि फियर आता है, एंड फियर आपको उस टाइम पे वो चीज़ नहीं बोलने देता है, एंड देन आप अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगते हो. लेकिन देन आई जस्ट फील दिस एंगर कि
यार मैं नो क्यों नहीं बोल सकती? मैं वहाँ पे बैठी ही क्यों हूँ? मैं उनकी सारी चीज़ों पे हाँ क्यों बोल रही हूँ, जबकि सामने वाला बंदा कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा है। वो कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। 1 मिनट, 1 मिनट यार, 1 मिनट। ये लो, बंद ही कर दिया। एक्चुअली वो मेरा नेट ख़त्म होने वाला है, तो बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सामने वाला बंदा कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन कर ही नहीं रहा है। आप देखोगे जहाँ पे भी आपको बहुत ही एंगर फील होगा ना किसी भी रिलेशन में, सामने वाला बंदा सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। उसका बहुत ही चाइल्ड लाइक और किडिश माइंड होगा। उसे समझ में ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होगा। वो छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा हो जाएगा, आपकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा। आप ही को सब समझना पड़ेगा, आप ही को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, आपको ही मिच्योर बनना पड़ेगा, आपको ही बड़ा बन के रहना पड़ेगा। एंड आप उस रिलेशनशिप में रिलैक्स हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो आपको कब लोगों के सामने बुरा बना देगा। एंड आप बुरा बन जाओगे एंड आपको ही हमेशा मिच्योर बन के रहना पड़ेगा। ऐसे रिलेशनशिप बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं एंड आई हैव रियलाइज्ड इट, आई हैव फेल्ट इट। ठीक है, तो जो नो बोलने का जो स्टार्ट है ना, वो एकदम से आप किसी बहुत ही डेंजरस जगह में जाके नो बोलना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। और अगर आपने बोल भी दिया तो दूसरी बार बोलने में आपको डर ही लगेगा, जब तक धीरे धीरे आपके माइंड को वो एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं लगता कि हाँ अब मैं नो बोल सकती हूँ। सिर्फ माइंड में सोचने से रोज़ 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 वो नो नहीं बोल पाएंगे, जब तक आप सच में लोगों के सामने जाके नो बोल बोल के आपके सामने वो रिफ्लेक्ट नहीं होता कि नाउ यू आर सेफ। वो आपको आपके नो बोलने पे भी अगर आपको आपके नो बोलने पे भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है एंड लोग आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, या फिर आपको सच में ऐसे लोग अब धीरे धीरे मिल रहे हैं जो आपके नो को पर्सनली नहीं ले रहे हैं, आपको फिर भी प्यार कर रहे हैं, तो जाके धीरे धीरे ये हील होगा। एकदम से फूटने से, नो नो बोल देने से नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने क्या किया रियलाइज़ कि मैं वाटर के लिए भी नो नहीं बोल पा रही हूँ। कुछ बना रहे हैं वही खा ले रही हूँ। मतलब वो काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं कि ये बना दूँ, वो बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन मैं जब नो बोल रही हूँ तो मैं नो के साथ काफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, नो, आई डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर बिकॉज राइट नाउ, बिकॉज माई स्टमक इज़ टू फुल, आई एम फीलिंग लो एंड आई एम नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड गो टू द लू। अगर मैं पानी पी लूँगी मुझे, मतलब बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि मैं नो बोल के काफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड सामने वाला जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है मैं उसको नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए, मुझसे रिलेशन ना तोड़ दे, वो मुझसे बात करना ना बंद कर दे। तो मतलब सामने वाला मेरे लिए बच्चा ही है और इमेच्योर ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो मुझे इतना प्रेशराइज फील हो रहा है कि मैं नो नहीं बोल सकती कि सामने वाला मुझसे गुस्सा ना हो जाए। लेकिन बहुत अच्छी धूप आ रही है ऐसी। लेकिन देन आई रियलाइज़ कि उसके बाद तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अगर आपको भी अपने किसी रिलेशन में ऐसे प्रेशराइज्ड फील होता है कि आप बस फटने वाले हो बॉम्ब की तरह, एंड प्रेशर कुकर की तरह वो प्रेशर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, एंड वो जा नहीं रहा है, एंड वो फील आप करते ही जा रहे हो लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से नो बोलना स्टार्ट करिए। लाइक बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अगर वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैं सबके लिए यही ऑर्डर कर रहा हूँ, सबको यही खाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे नो बोलिए कि नहीं मुझे ये नहीं खाना। अगर आप सबके लिए भी ऑर्डर कर रहे हो तो मैं वो नहीं खाऊंगी, मुझे वो नहीं खाना। अगर आप सच में करना चाहते हैं सबके लिए तो आप मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो। तो आपको अगर पानी का ग्लास ऑफर कर रहे हैं, आपको नहीं मन हो रहा तो आप नहीं पियो बिना एक्सप्लेन किए। आपको टी कॉफ़ी नहीं पीने का मन है तो आप मत पियो विदाउट एक्सप्लेनिंग कि मुझे दूध सूट नहीं करता, अब मैं पीऊँगी तो मैं ब्लोट हो जाऊँगी, सुबह सुबह मुझे हैवी फील होगा। नहीं, बस नो। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग,
आ, कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आज ये बन रहा है, आज ये खाना है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे ये खाना है, बस। वैसे ही आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कोई आपको कुछ सेल करना चाहता है, कुछ बेचना चाहता है, वो आपको काफ़ी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे सीधा नो, एंड बस हो गया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स इट। इससे आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि अब आपके लिए नो बोलना सेफ है। एंड जब इसके बाद भी वो लोग जो जहाँ पे आपको नो बोलना सेफ लगता है, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप नो बोल रहे हो, मतलब वो चीज़ें नहीं करेंगे जिस चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो, जो चीज़ आप चाहते हो वो करेंगे, तो धीरे धीरे ये फियर आपका डिज़ोल्व होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, एंड आपको नो बोलने में फिर उतना डर नहीं लगेगा। आप रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हो, शॉपिंग मॉल में ट्राई कर सकते हो, छोटी छोटी जगहों पे जाके आप पहले धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि एंड देन धीरे 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 आपके माइंड से ये फियर निकलेगा। बिकॉज डीपली व्हाट आई हैव रियलाइज कि पीपल प्लीजिंग का जो डीप वूंड है ना, वो ये है इन द एंड कि आई विल बी नॉट एबल टू एग्जिस्ट, आई विल नॉट एग्जिस्ट। मैंने नो बोल दिया, वो गुस्सा हो जाएंगे एंड मेरा रिलेशन टूट जाएगा, मैं अकेली हो जाऊंगी, आइसोलेशन का फियर, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले कैसे करूँगी, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, देन आई विल नॉट एग्जिस्ट। डीप डीप कोर वुंड तो मुझे यही समझ में आता है, एंड मुझे ये समझ में आया है कि आई वॉन्ट फ्रेंड्स, आई वॉन्ट गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स विद पीपल, आई वॉन्ट गुड कम्युनिटी, बट आई हैव फियर दैट आई विल नॉट एग्जिस्ट, कि मेरी नीड्स मीट नहीं होंगी रिलेशन में, मेरे नीड्स मीट नहीं होते। मेरे माइंड को ऐसा ही लगता है, सबकॉन्शियस माइंड को, कि रिलेशन में मेरे नीड्स मीट नहीं होते, इसलिए मैं लोगों से भागती हूँ। लेकिन जो मेरे ये दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है जिसको सुपरफिशियली ऐसा लगता है कि उसको कोई रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको डीप डाउन फियर है दैट शी विल नॉट एग्जिस्ट, एंड देन ये पार्ट है जिसको चाहिए रिलेशनशिप, वो इसको ये बताना चाहती है कि अपने फियर्स को देखो, तुम्हें ये फियर्स हैं। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई डू वॉन्ट गुड फ्रेंडशिप्स, गुड रिलेशनशिप, गुड कम्युनिटी इन माई लाइफ, एंड आई फील गुड अराउंड पीपल, आई डोंट फील बैड, but I need to work on my people pleasing। जो मैं लोगों के साथ होते हुए भी अलोन फील करती हूँ, सीन और हर्ट फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए ही स्टैंड नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने नीड्स को ही मीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ अबैंडन करती हूँ खुद को। जहाँ पे मुझे नो बोलना चाहिए, जहाँ पे मुझे रेस्ट करना है, जहाँ पे मुझे उस पार्टी में फंक्शन में नहीं जाना है, जहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं पहनना है, मुझे वो चीज़ नहीं खानी, मुझे वो चीज़ नहीं करना, मैं वो सब चीज़ें करती हूँ। मैं खुद के लिए खुद के पास भी नहीं हूँ। पीपल प्लीजिंग की वजह से मैं कहीं भी किसी चीज़ को भी नो नहीं बोल रही हूँ, मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ डर के मारे कि आई विल बी अबैंडन्ड, आई विल नॉट एग्जिस्ट, आई विल बी आइसोलेटेड। इन फियर्स की वजह से रिलेशन से डर लगता है। रिलेशन से डरने वाली कोई बात है नहीं, एंड आई नो इसे हील होने में टाइम लगता है, मुझे खुद ही टाइम लग रहा है, आपको भी टाइम लगेगा अगर आप भी सेम सिचुएशन में हो तो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मतलब ओ माय गॉड नाउ आई हैव टू गो देयर, अदरवाइज़ उन्हें बुरा लग जाएगा, वो इस चीज़ को बुरा मान के बैठ जाएंगे, मुझे लोगों के सामने बुरा बनाना स्टार्ट कर देंगे, मुझे वही पहन के जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मेरे बारे में बिचिंग करेंगे एंड मुझे बुरा बोलेंगे, मुझे बुरा बनाएंगे, मुझे वहाँ जाके वो सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो मैं नहीं खाना चाहती, मुझे वो सारी चीज़ें पीनी पड़ेंगी जो मुझे नहीं पीनी, मुझे वैसा बन के रहना पड़ेगा जैसी मैं नहीं हूँ, मुझे वैसी ही बातें करनी पड़ेंगी जैसा उनको पसंद है, जैसा उनको सुनने में अच्छा लगता है, मुझे वैसे ही बैठना होगा, वहीं बैठना होगा, उतने टाइम के लिए बैठना होगा। तो यही आपके माइंड ने मे भी सीखा कि रिलेशनशिप्स मतलब बर्डन,
रिलेशनशिप मतलब अबैंडनिंग योर सेल्फ एंड योर नीड. रिलेशनशिप मतलब सेल्फलेस. खुद को बिल्कुल भूल जाओ. यू डोंट एग्जिस्ट. सामने वाला बंदा प्लीज होना चाहिए. सामने वाले बंदे को कोई भी कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए. किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए. अगर वो किसी चीज़ का बुरा मान गए तो यू आर इन अ ट्रबल. उन्हें किसी चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए. आपने मे बी यही सीखा. ओके. और इन सब चीज़ों की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके माइंड को ऐसा लगता है कि यार रिलेशनशिप मतलब इट्स अ बर्डन. मुझे नहीं जाना वहाँ पे. मतलब मैं वहाँ पे जाके मैं बन के अगर रह ही नहीं सकती हूँ तो मतलब रिलेशनशिप ही बुरे हैं. मतलब लोग ही बुरे हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. डीप डाउन यू क्रेव फॉर इट. यू वॉन्ट कम्युनिटी. यू वॉन्ट पीपल. आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ बट यू रन अवे फ्रॉम इट बिकॉज यू फियर दैट यू विल नॉट एग्जिस्ट. And if you will be yourself and if you will do what you wanna do and if you will be how you wanna be, then people will start to talk bad about you. People will take it personally. People will act immaturely. Then you feel yeah, relationship is a burden. क्या मुझे इतना exhausted feel होना चाहिए? ऐसा क्यों है? क्यों मुझे सामने वाले के मूड के अकॉर्डिंग खुद को रखना पड़ रहा है? क्यों मुझे सामने वाले की इमेच्योरिटी को सहना पड़ रहा है? क्यों मैं बड़ी बन के रहूं? क्यों मैं ही सारी चीज़ें समझूं? जबकि कोई भी रिलेशनशिप इक्वल पार्टनरशिप पे ही तो चलता है ना. नहीं तो कैसे चलेगा? इक्वल बैलेंस ही नहीं होगा. आप ही बस समझे जा रहे हो. आप ही उनके मूड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करे जा रहे हो. आप ही सेल्फलेस हुए जा रहे हो. एंड में गुस्सा सब कुछ तो आप ही को फील हो रहा है ना. एंड में डिजीज़ भी तो आप ही को हो रही है. उनको थोड़ी ना होंगी. सो इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हो मुझे तो समझ में आ गया है कि आई वॉन्ट relationships in my life, good community, good friends in my life, but I'm scared because I have a fear that I will not exist because of my people pleasing. I feel this pressure कि मैं बन के रह ही नहीं सकती हूँ. मुझे कुछ और बन के रहना पड़ेगा. मुझे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो उनको अच्छी लगती है. मुझे उनके मूड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको किसी के मूड के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं करना है. इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में. और अगर आप नो बोल रहे हो तो उनका भी नो सुनना आपको चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आप बन के रह रहे हो सारे वही हैं जो वो बन के रहना चाहते हैं. वो कितना स्ट्रॉन्ग, कितना पावरफुल और कितना हीलिंग होगा और कितना अच्छा लगेगा ऐसे रिलेशन्स में रहने में. ऐसे रिलेशन जहाँ पे लोग झूठे हैं. एक दूसरे के सामने झूठा बन के रहना पड़ रहा है. वो नहीं है वैसा बन के रहना पड़ रहा है. उनके मूड को ठीक करके रहना पड़ रहा है कि उनको किसी चीज़ से बुरा ना लग जाए. उनको किसी चीज़ को बुरा ना मान जाए. ऐसे क्या रिलेशन है? ये रिलेशन्स नहीं होते हैं. ये बर्डन होते हैं. और ऐसे बर्डन को लाइफ से डिस्कार्ड कर देना चाहिए. ऐसे लोगों को भी लाइफ से हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में सिर्फ डिजीज़ ही लाते हैं. गुस्सा लाएंगे और डिजीज़ लाएंगे बिकॉज आपने वो सारे इमोशंस अंदर पेंट अप कर लिए हैं. अब वो एकदम फटेगा, एक दिन फटेगा और फिर वो लोग आपको बोलेंगे, वही 4 लोग, ओ सी कितने गुस्से वाली है ये, कितना कितना गुस्सा आता है इसको. मतलब वही आपको गुस्सा दिलवा रहे हैं और वही बोलेंगे कितना गुस्सा आता है. एंड वो आपको शेम फील करवाएंगे आपके गुस्से के लिए भी. तो इसका निचोड़ ये था कि आप नो कैसे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आप डीप डाउन खुद से पूछिए ये क्वेश्चन कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन इफ़ आई स्टार्ट टू से नो. एंड व्हाई एम आई स्कैर्ड ऑफ relationships in my life? What am I scared of in relationships? What am I scared of in relationship? No. What am I scared of will happen if I will get into relationship, whether it is friendship or any kind of relationship. And trust me, आपको इसके आंसर्स मिलेंगे जैसे कि मुझे मिले हैं कि I want to be in a relationships, I want friendship, I want good community, but I fear that I cannot be myself. I just cannot exist.
I have to dim my light. I have to be powerless. I cannot be my true authentic self. I cannot express myself. If I will do all these things, I will be rejected, and I will be abandoned, and rejection somewhere triggers me, and I'm working on it, and I will come up if with a new realization on rejection. So yeah, reflect on it because relationships are beautiful. आपकी लाइफ में कुछ आता है तो रिलेशंस के और पीपल के जरिए ही आता है. आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते ना लाइफ में. लोग आपको हेल्प लाते हैं, काफ़ी चीज़ें देते हैं यार लोग. पीपल आर इम्पॉर्टेंट, बट वी आर स्कैर्ड ऑफ पीपल. आई एम स्कैर्ड. We are scared of people because we feel we are scared of relationships because we feel that we cannot exist. We cannot be ourselves. We have to discard parts of ourselves, जो भी parts हैं. Otherwise we cannot be in a relationship. ऐसा नहीं है और ऐसा ना मुझे रहना है, ना मुझे ऐसा बनना है. I really want to heal this. एंड द बेटर वे इज़ इसको एक्नॉलेज करिए एंड स्टार्ट टू से नो. धीरे धीरे स्टार्ट टू से नो, छोटी छोटी चीज़ों में, एंड यू विल रियलाइज़ कि एक दिन आप सारी चीज़ों में नो बोल पाएंगे. टाइम लगेगा, मे बी 6 months 1 year, बट बोलना स्टार्ट करिए. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड इट. लेट्स सी कितना टाइम लगता है. On this note, I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye and take care. And sorry for my voice. थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग. अब ये बोलना थोड़ा सा ना टफ होता है. If you really like my content, resonate with my content, then do share with your friends and family. Do comment down below. Subscribe to my channel and do like also. Bye.